Hello students, welcome again in ARS tutorial and today we are going to start most important topic which is respiratory system in human being. So in previous video or you can say previous lecture we have discussed about the different respiratory organ of animals in which one of them is this which is respiratory system in human beings. So I have already told you that respiration occurs through different organ described by different terms, like respiration through gills is known as bronchial respiration, whereas respiration through skin is known as cutaneous respiration, and respiration through lungs is known as pulmonary respiration. So here we are going to discuss or going to read the pulmonary respiration, because in human beings, as we know that in human beings respiration occurs through lungs. So if respiration occurs through lungs, then it is known as pulmonary respiration. Or you can say in all vertebrate except fishes, or you can say class Pisces, respiration occurs through lungs. So respiration occurs through lungs is known as pulmonary respiration. It is to clear to all of you. So now we are going to start the respiratory system in human being. So here the diagram of respiratory system in human being. So read it carefully, and in this video I will told you the different parts which are included in human respiratory system. So starting you can see that I will tell you in this video the passage of air, how the air or you can say oxygen enters into the lungs, and after that mechanism of respiration. In that video we will discuss about how the gases exchange takes place in the alveoli. So starting, first one is nasal cavity. This is the diagram of human respiratory system like this. Okay, means आप इस तरह खड़े हैं और इस तरह सर कर लें. ये आपका राइट हैंड साइड है एंड ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है. सो आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. दिस इज राइट एंड दिस इज लेफ्ट. ओके, लेट स्टार्ट. हियर दिस इज नेजल कैविटी. ये आपका नेजल कैविटी है. ओके, नेजल कैविटी से पहले जो ओपनिंग है, ठीक है, टू होल्स आर प्रेजेंट विच इज नोन एज नॉस्ट्रिल्स. थ्रू नॉस्ट्रिल क्या होगा, एयर इंटर करेगा. तो सबसे पहले हम पार्ट जान ले, उसके बाद में कंडक्टिंग ऑर्गन देखते हैं कौन कौन सा है. ओके, सो नेजल कैविटी नॉस्ट्रिल की थ्रू एयर इंटर करता है या नेजल कैविटी. फिर जैसे ही एयर का पैसेज आगे बढ़ेगा, ओके, व्हेन एयर मूव्स फॉरवर्ड, देन हेयर pharynx region which is known as nasopharynx. Okay, nasopharynx is the region I have already told you in lecture of digestion in human beings. See here mouth, आप जब खाना खाते हैं फूड पार्टिकल्स आता है वो भी यहीं पहुंचता है और जो एयर है वो भी यहीं पहुंचता है. तो हमने उसी वीडियो में आपको बताया था कि pharynx is a region which is common for air as well as food. So here we are discussing about the topic respiratory system in human beings. That's why I have mentioned here nasopharynx. Okay, so after nasopharynx here epiglottis or you can say glottis, then larynx is there. Larynx is a portion which is also known as sound box. Okay, larynx को हम लोग साउंड बॉक्स कहते हैं. ठीक है, पहले कंडक्टिंग ऑर्गन जान लें, फिर बहुत इस वीडियो में कई इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है जो हम आपको आज डिस्कस करेंगे. ओके, सो नाउ व्हेन एयर पासेस थ्रू द लैरिंग्स, हियर अ कार्टिलेजिनस रिंग्स आर प्रेजेंट अराउंड द ट्राइकिया. यहां से ट्राइकिया स्टार्ट होता है और एक कार्टिलेजिनस रिंग लाइक ये ट्राइकिया है. ओके, और इसके चारों तरफ आप रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट कर दें. ठीक है, वो भी कार्टिलेजिनस. ठीक है, कार्टिलेज का बना होता है. तो ये रिंग इस चारों तरफ इसको सर्कल कर ले रहा है. किसको, ट्रैकिया को. आफ्टर ट्रैकिया इट हैज सब ब्रांचेस विच इज नोन एज ब्रोंकस एंड ब्रोंक्यूल्स. ओके, आफ्टर ब्रोंक्यूल्स इट विल अराइजेस इनटू द फाइन बलून लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज अल्वियोलर सैक. ओके, ये अल्वियोलर सैक और यू कैन से अल्वियोलाई. ओके, ये तो हो गया कंडक्टिंग ऑर्गन. दीज आर द पैसेज by which the air flows through the nostril and reaches to the alveoli. After that the structure of lungs. So this is right lungs. I have mentioned here lungs के ऊपर, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, कि जो लंग्स है हमारा,
आप कभी जब इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन करते हैं तो आपको यहां फील होता है कि इट एक्सटेंड आउटसाइड while inspiration like this and it relax its position while expiration. Okay, so here above the lungs a membrane is present, double membranous system is present which is known as pleural membrane. Remember this point, pleural membrane present है किसके ऊपर, लंग्स के ऊपर. ये लंग्स का स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हो, ये लंग्स हमने ड्रॉ किया है, दिस वन इज लंग्स, और इसी के ऊपर ये है प्लूरल मेम्ब्रेन. प्लूरल मेम्ब्रेन क्या है, डबल मेम्ब्रेन. सो इफ द डबल मेम्ब्रेन सिस्टम इज प्रेजेंट देन ए कैविटी लेफ्ट इन बिटवीन दीज मेम्ब्रेन. दो मेम्ब्रेन है तो इसके बीच में जो स्पेस बचेगा उसको हम लोग बोलते हैं प्लूरल स्पेस, और यू कैन से प्लूरल कैविटी. ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर है यू आर सीइंग, इसी को हम लोग बोलते हैं प्लूरल कैविटी. यहां पे हमने मेंशन कर दिया है. ओके, अब देखिए ये प्लूरल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है. जैसे हमारा जो लंग्स है या फेफड़ा आप कहिए, उसके ऊपर जो ये मेम्ब्रेन है, ठीक, तो मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन. मेम्ब्रेन प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द वॉट एवर यू हैव थिंक. ठीक है, कि जैसे मेम्ब्रेन आप सेल मेम्ब्रेन पढ़े, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़े, ओके, सो वो भी क्या करता है, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. सो मेम्ब्रेन क्या करेगा, यहां पे लंग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. एंड बिटवीन दीज टू मेम्ब्रेन मींस इन प्लूरल कैविटी ये फ्लूइड इज प्रेजेंट विच इज नोन एज प्लूरल फ्लूइड. इसको हम लोग बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड. प्लूरल फ्लूइड इसके अंदर भरा हुआ है. अब यहां एक क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लूरल फ्लूइड. ये क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं कि फंक्शन ऑफ प्लूरल फ्लूइड यू हैव टू टेल इन द कमेंट बॉक्स. ओके, आफ्टर दैट अब ये क्या करेगा, यहां पे जो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये रिब केज का है, क्रॉस सेक्शन. रिब्स जो यहां पे आपको दिख रहे हैं ये क्रॉस सेक्शन है, और यू कैन से कट सेक्शन, कट सेक्शन ऑफ रिब्स. ओके, साइड से खड़े हैं, ये जो रिब्स कटेंगे तो ये रिब्स आप इमेजिन करिए इस तरह से ऊपर आते हैं. ओके, लाइक दिस, और ये प्रोटेक्ट है हमारा लंग्स. तो ये हो गया आपका राइट साइड लंग्स और ये हो गया लेफ्ट साइड लंग्स. ओके, सो दीज आर द वेरियस ऑर्गन or you can say system present in the respiratory system in human beings. So respiratory system in human beings basically divided into two types. The first one is conducting organ and the second one is main respiratory organ. If the question is asking that what is the conducting organ in human being, so you have to tell from the nostril to bronchioles. Nostril से लेके bronchioles तक आपको बताना है. Okay, and main respiratory organ is lungs, because in lungs alveoli are present and alveoli are the main site of gaseous exchange in vertebrates. Okay, after that when you see the movement of fresh air into lungs, अगर आप lungs का जो movement है means from the nostril to the alveoli or you can say alveolar sac, अगर इसका मूवमेंट हम देखें तो कहां से एयर एंट्री करता है, कहां को जाता है और उसके बाद किस ऑर्गन तक पहुंचता है. तो देखिए यहां पे हमने एक फ्लो चार्ट बनाया है और जितने भी ऑर्गन इसमें मेंशन है यू कैन सी इन दिस डायग्राम दैट द फर्स्ट प्रोसेस इज नॉस्ट्रिल, मींस एयर विल इंटर थ्रू नॉस्ट्रिल, मींस एयर यहां से इंटर करेगा. आफ्टर दैट इट विल रीच इन नेजल कैविटी. You can see here nasal cavity, then nasopharynx, nasopharynx is here, then epiglottis, epiglottis is here, after that larynx, larynx के थ्रू फिर कहाँ आएगा, ट्राइकिया, ट्राइकिया के बाद ब्रोंकियाई, आफ्टर दैट ब्रोंकियोल्स, देन अल्वियोलर डक्ट. देखिए ये अल्वियोलर डक्ट है और उसके बाद मींस अल्वियोलाई जिससे अटैच है उसी को अल्वियोलर डक्ट कह रहे हैं. ओके, देन अल्वियोलाई और अल्वियोलर सैक. इस तरह से जो है एयर हमारे रेस्पिरेटरी और यू कैन से कंडक्टिंग ऑर्गन में मूव करता है. यह वन क्वेश्चन ऑल्सो देयर कि ये जो कार्टिलेजनस रिंग है इसका क्या फंक्शन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कार्टिलेजनस रिंग. आई एम आस्किंग टू क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कार्टिलेजनस रिंग एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लूरल फ्लूइड. ओके, प्लूरल फ्लूइड का क्या फंक्शन है और कार्टिलेजनस रिंग का फंक्शन क्या है. ओके, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स या प्रोसेस आई एम गोइंग टू डिस्कस
which you can feel every time. Okay, जब आप रेस्पायरेशन पढ़ेंगे, दे आर रेस्पिरेटरी सिस्टम, जब ब्रीदिंग सिस्टम जो हम लोग पढ़ते हैं, ब्रीदिंग सिस्टम इन वर्टिब्रेट्स और यू कैन से ह्यूमन बींग्स, तो इट इन्वॉल्व्स टू मेन प्रोसेस which I will discuss in further video, inspiration as well as expiration. So here I am discussing about the larynx. Why larynx is known as sound box. Okay, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान दीजिए कि while inspiration it is not possible to speak, मतलब आप सांस अंदर लेते हुए बोल नहीं सकते. ओके, कि आप सांस अंदर ले रहे हो मींस इंस्पायरेशन प्रोसेस कर रहे हो और आप बोल सके. इट इज पॉसिबल व्हेन एक्सपायरेशन takes place. While expiration it is possible to speak. आप कभी भी बोलते हैं तो जब एक्सपायरेशन करते हैं तभी आप बोल सकते हैं. मैकेनिज्म देखिए बोलने का कि while expiration you expelled out air forcefully and when these air expelled out forcefully through the larynx or you can say sound box, it will produce sound. Okay, जब आप फोर्सफुली एक्सपायरेशन करेंगे तो एयर यहां से जब पास होगा तब यहां पे वाइब्रेशन होता है एंड विद द हेल्प ऑफ चीक एंड लिप्स आप जो भी मीनिंगफुल और सेंसफुल टर्म या वर्ड यूज करना चाहते हैं आप उसको यूज करते हैं. ठीक है, और यहां पे मींस इन लैरिंग्स बॉक्स ओनली वाइब्रेशन इज प्रोड्यूस. यू कैन फील while speaking when you put your finger on neck or where larynx box or sound box is present, and while speaking you will feel only vibration you can feel. Okay, here we feel only vibration, but with the help of cheek and lips we can converted these vibration into meaningful or senseful terms, words or sentence. Okay, so I think it is clear to all of you that the different parts or conducting organ of the respiratory system in human beings, and the main respiratory system is lungs. Here the flow chart of the movement of fresh air into the lungs. So after that in next video we will study about the mechanism of respiration and how the air or you can say gaseous exchange takes place in alveoli. Okay, so I am asking two questions once again and you have to answer that what is the function of cartilaginous ring in trachea and what is the function of pleural fluid in pleural membrane. So thank you to all of you for watching us on ARS tutorial.